Ben seni tanımam Şehrazat Hanım. Son bildiğim oğlumun ölümüne sebep olmak. Hepsi o kadar. Hayır. Hayır Burhan Bey. Bak, 10 canım olsa birini bile vermem. Ne sana ne de oğluma. Ben şirketten biraz borç almak istiyorum. $150.000 ihtiyacım var. Sadece bir gece ve $150.000 sizin. Siz beni ne zannettiniz? Ben sadece bir teklifte bulunuyorum. Niye bu kadar sinirleniyorsunuz ki? Benimle bir gece geçirin, $150.000 sizin olsun. Siz nasıl bana bu kadar aşağılık bir teklifte bulunabiliyorsunuz? Dubai projenizin başına başka mimar bulun. Ben artık sizin olduğunuz binaya adımımı bile atmam. Teklifimi kabul etmiyorsunuz yani. Asla. Kabul ediyorum. Kurban olayım, izin ver bir de ben konuşayım. Yumuşatırım belki. Ne yumuşaması be kadın. Gel paranı al deyince ne dedi biliyor musun? Torununuzun hayatını kurtarmakta çok geç kaldınız dedi bana. Sen niye bu kadar koruyorsun bu kadını? Hı? Hoşlanıyorum belki. Bir sorun mu var? 4 aylık deneme süreniz dolmuş. Evet. Ay başından geçerli olmak üzere kadroya atamanız yapıldı. Nasıl? Artık kadrolu oldunuz. Maaşınız da yeni pozisyonunuza göre ayarlandı. Nurhayat Hanım size söylemedi mi? Neyi? Almatalılara vereceğimiz yemekte siz de olacaksınız. Yo, bir şeyden haberim yok benim. Atlamış demek ki. Hemen hazırlanın, çıkıyoruz birazdan. Ben gelmesem Niye? Alma Ata projesiyle bir ilgim yok ki. Ama bu Bin Yapı'nın projesi Şehrazat Hanım. Siz de artık Bin Yapı'nın ödüllü bir mimarı olduğunuza göre, değil mi? Annemi istiyorum. Gelecek yavrum. İşten çıksın, gelecek. Sen yorma kendini ha. Gelmedi mi daha? Bekleyerek. Bastanı kesecek. Değil mi? Güzel hediyeler getirecek. Ya İnanılmaz bir haber. Bildiğiniz gibi değil. Çok güzel, çok ucuz. 4-5 tane aldım. Nereye? Fakat gümrükte acayip bir para istediler. Elimi yıkamaya. bunu yapmak için. Biliyorsunuz burada havyar çok pahalı. Sonra nasıl hallettiniz? Yani anlayacağınız asları yüzünden pahalıya geldi. Şehrazat Hanım arıyor. Ben şimdi ne diyeceğim?
शहरजाद जब तक नहीं आती मैं ऐसा करती हूँ, यहीं रुक जाती हूँ। मेरे ख्याल से काफी देर हो गई है आंटी। बुरहान अंकल परेशान हो रहे होंगे। हाँ, वाकई बहुत देर हो गई है। अल्लाह मेरे बच्चे की हिफाजत करे, दुआ करना। शहरजाद से बोलना कि मेरे बच्चे का केक जरूर काटे। बाय 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 बाय। वो अल्फाज क्या थे? कौन सा अल्फाज? वही जो तुमने कहा था अभी, कुछ हिफाजत। हाँ, अल्लाह हिफाजत करे। मेहरबान बाजी ने बताया था। मुझे अंदाजा था। बहुत देर हो गई है बीनू यार। कैन मेरा इंतजार करते करते सो गया। पर देखना, कल मैं उसकी बर्थडे का केक जरूर काटूंगी। इंशाल्लाह। कैन को मेरा गिफ्ट जरूर देना। हम 5 मिनट के लिए चले वहाँ। इस वक्त? मुझे भी देखो, तुम इतनी रात हो गई और हॉस्पिटल जाने का कह रही हो। नहीं नहीं, मैंने सोचा ही नहीं। सुबह से बिजी थी तुम मीटिंग के कामों में, और मुझे देखो मैं अपनी फिक्र में हूँ। ऐसा मत कहो। चलो चलो चलते हैं। इसकी जरूरत नहीं, बहुत देर हो गई है बीनू। सब समझती हूँ मैं सच कह रही हूँ, बहुत देर हो गई है, तुम घर जाओ। हाँ, ताकि तुम वहाँ जाकर अकेले सारा केक खा जाओ। मैं पहले ही कितनी भूखी हूँ। वहाँ होटल का खाना बिल्कुल अच्छा नहीं था। करीम साहब तो आज तुमसे वाकई बहुत इम्प्रेस हो गए। हम आखिर यहाँ पर क्यों आए? मैं बहुत थक गया हूँ करीम। कमान यार, थोड़ी सी देर से कुछ नहीं होता। आओ। कुछ और लोग जल्दी आओ। मुराद, तुम आज कुछ ज्यादा ही हंस रहे थे, तुम्हें अंदाजा है? 2 ग्लास प्लीज, और कुछ नट्स वगैरह दे दीजिएगा। थैंक यू। दुबई के प्रोजेक्ट के लिए इतने परेशान क्यों? रिलैक्स हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा मेरे भाई। वो नहीं जानते कि इंसानों के साथ कारोबारी मामला कैसे तय किए जाते हैं। उनकी नजर कहीं और थी। वो लड़कियों में दिलचस्पी ले रहे थे। तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। असल में तुम्हारा। तुम भी ना, क्या फर्क पड़ता है मेरा इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा? हम दोनों अलग थोड़ी हैं। शहजाद ने क्या जुमला कहा था? अल्लाह, ऐसे ही कुछ कह रही थी ना। उसने लैंग्वेज कैसे सीख लिया? बहुत हंसी आ गई थी यार। पहले कैसे सीधी सादी चुपचाप बैठी थी, फिर अचानक कैसे खुल के सामने आ गई। हाँ, आखिरी वक्त में खाने पर चलने का कहा था, इसलिए शायद तुम्ही ने मजबूर किया था। और क्या करता मैं? कीमती आर्किटेक्ट है, नखरे तो उठाने पड़ेंगे उसके। शहरजाद के मौजू को खत्म करो यार। क्यों? कोई दूसरा मौजू नहीं? मेरे पास तो नहीं। दूसरे मौजू भी हैं। तुम क्यों उस औरत से चिढ़ते हो? मेरी तो ये बात समझ में नहीं आती। चिढ़ता नहीं हूँ, तुम्हें कैसे बताऊं मैं? मुझे काम की टेंशन है। हमें दुबई का प्रोजेक्ट जल्दी मुकम्मल करना है। 15 दिन में मुकम्मल कर दिया काम? क्या ऐसा नहीं? बहुत तेज है वो लड़की यार। हाँ, कोई भी कर सकता है, इसमें क्या है? मगर फिर भी नखरे दिखाए उसने। कैन के लिए दादी गाड़ी लेकर आई थी। कितना प्यारा लग रहा है। माशाल्लाह। मम्मा। दीदी,
बच्चा तो ठीक है? ठीक है। तो क्या जिंदा रह पाएगा? अच्छा है, सुनकर सुकून मिला। देखो नाहिदा बेगम, मेरी बात गौर से सुनो। मासूम बच्चा है, तकलीफ में था, मिला ही हो। और तुम ये भी जान गई हो कि अब वो बिल्कुल ठीक है। मगर अब सब खत्म, ठीक है ना? वो बच्चा अजनबी है, एक ऐसी इज्जत का जिसे हम नहीं जानते। पोता है हमारा। नहीं, हमारा कोई पोता नहीं है। हमारे बच्चे घर में है, इस घर की छत के नीचे, समझ गई ना? हमारे अहमद का बच्चा है। देखो बेगम, अहमद हमारा बेटा नहीं है। बुरहान साहब, बस मेरे बेटे ने जब मेरे सामने खड़े होकर उससे शादी करने का कहा था, और कहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं उससे शादी जरूर करूंगा, वो उसी वक्त मर गया था। आपको 100 मर्तबा मैंने कहा है, आप जितना चाहे इनकार करें, वो बच्चा हमारा पोता है, हमारा खून है वो। मेरा कोई इस तरह का खून नहीं है, नहीं है। मेरा असली खून इसी घर में है, इसी छत के नीचे। अब अगर दोबारा तुम उस औरत के पास गई, दोबारा उस बच्चे को देखा, ये भी सुना तो यकीन कर लो, 39 साल पहले तुम जो मेरी बीवी थी, वो अपना सामान लेकर चली जाएगी इस घर से। क्या? ये मेरी आखिरी वसीयत है। रुकी रुकी, कोई अच्छी सी दुआ मांगे। तीन गिनने के बाद कैंडल्स बुझा देना। 3, 2, 1। वो नाइफ ले आओ। ये लो। लंबी उम्र हो तुम्हारी। रुको रुको, मैं एक तस्वीर तो बना लूं। आए मेहरबान बाजी। हाँ हाँ, सब सही बात चाहिए। आइए, मुझे वो देने। अरे मेरा गिफ्ट तो रह ही गया। बेबी, ये ठीक होने तक केक नहीं खा सकता, सबको याद है ना? शुभ स्माइल करो। थोड़ी सी और अंदर हो ना। स्माइल। कैन, भागो भागो जल्दी। ये लो। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ले लो, तुम्हारी बहुत है। इसे भूख लग रही है और खाना भी बहुत पसंद आ रहा है। मुझे भी भूख लग रही, जल्दी आ जाएं। आ रहे हैं, चलो कैन, ध्यान से। चलो बैठो जानी, आप जल्दी से नाश्ता कर लो, फिर हम घूमने के लिए जाएंगे। हम कहाँ जाएंगे? मालूम नहीं, आपको कहाँ जाना है वैसे? कहाँ चले हम मेहरबान आंटी? अरे मेरी नन्ही सी जान, तुम जहाँ बोलो चलेंगे। और वैसे भी 1-2 दिन में मैं वापस चली जाऊंगी। क्यों? कैन भी ठीक हो गया है, अब यहाँ रहने का कोई मकसद नहीं। बाकू में क्या कोई आपका इंतजार कर रहा है? तो फिर कुछ दिन और रुक जाइए ना, प्लीज। क्या मैं रुक जाऊं कैन? हाँ। और पैसे का
चलो बेटा आ जाओ। अरे अम्मी, आप क्यों काम कर रही हैं? वो मैं खुद ही लेकर आना चाह रही थी मगर। अरे तो क्या हो गया अगर मैंने बना दी तो? अमेरिका जाने से पहले भी तो मैं ही बनाती थी। आपको जहमत होती है इसलिए कह रहा हूँ। आपका शुक्रिया अम्मी जान। तुम्हारा फ्रिज बिल्कुल खाली है, अंदाजा है तुम्हें? नॉर्मल बात है, काफी दिनों से बाहर ही खा रहा हूँ। घर का भी देखो क्या हाल बनाया हुआ है। किसी चीज की कमी है? अरे नहीं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। अगर तुम नहीं होगी तो ये घर घर नहीं कुछ और ही बन जाएगा। कुछ और चाहिए? नहीं शुक्रिया तुम्हारा। ये अच्छा फरीदा बेगम। इतनी बड़ी कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर का घर नहीं, मुझे तो कोई होटल सा नजर आता है। न सर्दी का एहसास न गर्मी का एहसास। बाबा बहुत अहमियत देते थे घरेलू जिंदगी को, जानते हो। अगर वो चाहते तो ये सब कुछ ना भी करते हो, लेकिन उन्होंने सारी जिंदगी लगा दी इस घर को बनाने में। सही कह रही हैं आप, कुछ ज्यादा ही अहमियत दे दी थी उन्होंने इस घर को। घर जैसा होता है वैसा ही नजर आता है। कुछ कहा? कुछ नहीं। इस तरह कैसे बनेगा ये घर? अम्मी क्या प्रॉब्लम है? आखिर आपको इस घर में क्या मसला दिखता है? दिखता है, खालीपन दिखता है। ये पूरा घर खाली पड़ा है ओनर, देखो। कुछ सोचो बेटा। फिर से वही बात कि मैं शादी कर लूं। ये बोलने का मेरा पूरा हक है। अपने पोता पोती देखना चाहती हूँ, बस अब शादी करने का वक्त आ गया है। अच्छी सी फैमिली हो, कोई अच्छी सी लड़की। देखना तुम्हारे लिए बड़ी अच्छी सी लड़की ढूंढूंगी मैं। और हाँ, किसी गलत लड़की के चक्कर में ना फंस जाना। ऐसे क्या देख रहे हो? अपने आसपास खुद कोई अच्छी लड़की ढूंढो तुम। मैं बाबा की तरह हो जाऊंगा, इस बात से डर रही हैं आप? हाथ आगे करूं? फंस जाना। ऐसे क्या देख रहे हो? अपने आसपास खुद कोई अच्छी लड़की ढूंढो तुम। मैं बाबा की तरह हो जाऊंगा, इस बात से डर रही हैं आप? हाथ आगे करूं? जल्दी से जैकेट पहन लो, मेरे बेटे को ठंड नहीं लगनी चाहिए। आप मुझे चॉकलेट्स दिलाएंगी ना? हाँ मेरी जान। मेरा बेटा बिल्कुल ठीक हो गया माशाल्लाह से, और अब शहर के लिए जा रहा है। मेहरबान बाजी, मेरा बेटा कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। ये भी पहन लो। बहुत प्यारे लग रहे हो। मम्मा मैं अपनी गाड़ी भूल गया। भागो भागो, जल्दी ले आओ। दादी जान ने दी थी मुझे। अरे वाह, दादी का तोहफा तो बहुत अच्छा लग रहा है। माली ने देखे बगैर ही चला गया। सूख गए हैं क्या? अरे तो तुम क्यों कर रही हो? बेहतर मैं मुझसे कहो दोबारा बुला ले उस आदमी को। ठीक है। एक अच्छा लगा तुम्हें? अगली बार और ले आना, मैं भी खाऊंगा। जरूर। क्या हुआ बेगम? एक हफ्ते से तुम्हारे मुंह से अल्फाज गरम गरम निकल रहे हैं। मुझे क्या मालूम, अगर मेरे मुंह से कोई गलत बात निकल गई तो मुझे घर से बाहर कर देंगे आप। प्यारे मामू। कितनी बार कहा है मुझे मामू मत कहा करो, समझ क्यों नहीं आती तुम्हें? फिर तो ज्यादा गुस्सा करेंगे।
आयशा चलो जाके अपना काम करो। तुम सही कह रही हो। तो तुम लोग सिर्फ मुझे दादा के सामने मामू कहना, समझ गई ना बात? समझ गई। मामू बोलो। नहीं गनी। बोलो ना। आप स्कूल क्यों नहीं जाते? मुझे स्कूल जाने का कह रही हो? आप हमारे साथ हमारी गाड़ी में चलिएगा ना। लड़कियों, तुम लोगों ने अभी तक कपड़े नहीं बदले? चलो कमरे में जाके फौरन कपड़े बदल के आओ। चलो जल्दी। चलो मुझे किस दो। चलो 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 चलो। अली कमाल भाई ने नहीं दिए क्या? नहीं दिए, अभी तक नहीं। अल्लाह अल्लाह, मगर क्यों? रुक जाओ। बाबा क्या कर रहे हैं? मुझे क्या मालूम, गार्डन में बैठे थे। पता नहीं कैसी जिंदगी, इतवार के दिन भी आराम नहीं मिलता। हिम्मत है तो बाहर जाके बाबा से कह दो, अभी तो तुम्हें बहुत काम करने हैं इतवार वाले दिन। हाँ ये तो है। और पैसे कब दोगे तुम मुझे? कौन से पैसे? क्या मतलब कौन से पैसे? गनी को यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, तैयारी करवानी है। उस वक्त तो बहुत हाँ हाँ कर रहे थे, अब क्या हुआ? रहने भी दो यार, अब फंसू जाए होंगे वो पैसे। अल्लाह अल्लाह, और किस तरह होंगे वो? तुम्हारे भाई के पास यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला दिमाग है क्या? तुम अपने दिमाग को देखो अली कमाल, मुझे गुस्सा मत दिलाओ, पैसे दो मुझे। फंसू जल्दी दो, आज ही एडमिशन करवाना है, वो इंतजार कर रहा है मेरा। मेरे पास इतने पैसे नहीं है, रियली नहीं है मेरे पास। तुम क्या समझती हो? इतने पैसे मैं कहाँ से ला सकता हूँ यार, और वो भी एक साथ? तो फिर बाबा से मांग लो। शायद तुम पागल हो गई हो। वो बच्चा इस हफ्ते से कोचिंग जाना शुरू हो जाएगा अली कमाल, ये जान लो तुम। अच्छा ये बताओ, मैं तुम्हें कब से जानता हूँ? 39 साल से। वो तो शादी को हो गए हैं, तुम्हें इससे पहले से जानता हूँ। 1958, 12 साल का था उस वक्त। तुम्हें जब उस वक्त देखा, रब से दुआ की ये मुझे दे दी। शुक्र है उसने तुम्हें मुझे दे दिया। 48 साल से मैं अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा हूं, हर सुबह, हर रात। लेकिन सबसे अच्छी बात क्या है जानती हो तुम? मैं तुम्हें खुश रखने की कोशिश कर रहा हूं। बेकार में जहमत की आपने। देखो बेगम, क्या मैंने अपना वादा पूरा नहीं किया? हमेशा पूरा किया। जब भी वादा किया पूरा किया। अंदाजा है मुझे, बहुत अच्छी तरह अंदाजा है। इस घर से चली जाना अपना सामान लेकर तुमसे कहा था, मगर तुम भी जानती हो वो मैंने मुंह से कहा था, मगर दिल से नहीं कहा था। अहमद के बेटे के लिए जो मैंने तुमसे कहा था वो ऐसा ही रहेगा, मगर वो दूसरी बात भूल जाओ। याद रखो, अगर तुम उन 48 साल को भूल जाओगी तो फिर तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचेगा।
गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग दीनू जी। कुछ भूल गई हैं आप? नहीं नहीं, काम से आई हूँ। सब खैरियत तो है? बहुत काम पड़ा था भाई। अपना ख्याल रखिए। चलो ठीक है, थैंक यू। गुड मॉर्निंग करीम साहब। गुड मॉर्निंग बीनू। आप आज यहाँ कैसे? वही काम। तुम यहाँ क्या कर रही हो? सोचा कि आज का दिन यूटिलाइज कर लूँ, तो बस इसीलिए चली आई। वो हमारा नया प्रोजेक्ट है ना, इसकी रिपोर्ट बनानी थी, वही बनाने मैं आई। भी उसी पे काम कर रहा हूँ। हाँ। अंदर आओ ना। घर से आते हुए काश तुम कॉफी भी लेती आती। लाने की क्या जरूरत है, मैं यहीं बना देती किस हूँ। तरह? अंदर कॉफी मशीन है ना। जबरदस्त। मुझे पहले क्यों नहीं खिलाया? मुझे पता है कि आप कॉफी बिल्कुल चीनी के बगैर पीते हैं। दूध के बगैर। ये भी मुझे पता है। टीवी पर ही देख लूंगा, मैच देखने नहीं जाऊंगा। क्यों? टीवी ज्यादा आरामदेह है यार, ट्रैफिक की टेंशन भी नहीं होती। कैसे आदमी हो तुम यार? मैं ऐसा ही हूँ बेटा, हो सकता है आ भी जाऊं। अरे आ जाओ ना, एंजॉय करेंगे। एड्रेस बताओ जरा। ठीक है, वहाँ जहाँ बड़ी सी पानी की टंकी है। हाँ हाँ बेटा, वो जगह मुझे मालूम है। ठीक है, मैं शुरू होने से पहले आ जाऊंगा, मैं फिक्र मत करो। चलो फिर बात होती है। तुम ओनर भी आएगा क्या? ओनर पता नहीं, कह दूंगा उसको। बाय। ये लीजिए। थैंक यू। अम्मी है, सुबह से तीसरी बार फोन कर चुकी हैं। जी अम्मी, कहाँ ना आऊंगा, अभी काम कर रहा हूँ। काम से फारिग होकर आपको फोन करता हूँ, ठीक है? इतवार के दिन का मतलब होता है अम्मी से लाजमी मिलना, चाहे कुछ भी हो जाए, जाना जरूरी होता है। बहुत इंतजार करती हूँ हर इतवार को। तुम क्या अपनी अम्मी के साथ रहती हो? नहीं, मेरे पेरेंट्स तो किबिस में रहते हैं। मेरे पापा यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। तुमने बताया था, लेकिन मैं भूल गया। काम शुरू करें? कॉफी तो बहुत अच्छी बनाती हो तुम। शुक्रिया। अच्छी लगी आपको? ओहो, तो इसका कमाल है। कहाँ से लाई हो तुम? ये बर्लिन से मुझे एक दोस्त ने ला के दिया था। बहुत अच्छा लगा। मुझे उम्मीद थी। हम आ गए। अरे ये क्या बात हुई? क्या तुम्हें नींद आ रही है कि तुम इस तरह से लेट जाओ? देखो, मैं तुम्हें बिल्कुल भी लेटने नहीं दूंगी, बिल्कुल लेटने नहीं दूंगी। और गुदगुदी करो? गुदगुदी हो रही है? गुदगुदी आ रही है। मेरी जान। चलो आप जाके पतंग उड़ा लो, पर ज्यादा दूर नहीं जाना। ओके मामा। कैन बिल्कुल ठीक हो गया। मुझे जिंदगी से और कुछ नहीं चाहिए, मेहरबान रहती। कैसी हैं आप? आपका घोड़ा बहुत अच्छा है। शुक्रिया, आपका भी अच्छा है। और नाम क्या है? शाह शहरियार। ओह, 1001 नाइट्स का शहजादा। अच्छा ये बताओ, इस शहरियार के शहजाद पे है क्या? उस शहजादे के बारे में क्या जानती हैं आप? जानती हूँ मैं अच्छी तरह। वो शहजादा जिसे औरतों पर भरोसा नहीं था। औरतों की इज्जत करना शहजाद ने तो सिखाया था उसे। सही कह रही हैं। खुदा हाफिज।
जी खुदा हाफिज। चलो बेटा चलें। कई साल पहले मेरी अहमद से मुलाकात हुई थी। यूनिवर्सिटी में मैं उससे 2 साल पीछे थी। नया एडमिशन लिया था मैंने। वो उस यूनिवर्सिटी में काफी अच्छे से पढ़ रहा था। ये उसी का है। हम एक जगह घूमने गए थे तो ये वहां पर खो गया था। अहमद उसे ढूंढने लगा तो मैंने कहा छोड़ो, अगर खो गया तो क्या हुआ। लेकिन उसने तो जिद पकड़ ली थी कि मैं ढूंढ कर रहूंगा और आखिरकार मिल गया। उसे अपनी हर चीज से बहुत मोहब्बत थी। हमारी शादी के बाद कैन ही उसकी जिंदगी था और फिर उसके बाद बाबा क्या गनी ने कहा है कि क्या फरमाया जनाब? इस साल का एग्जाम बहुत मुश्किल था, वरना वो तो पढ़ाई में काफी अच्छा है। नहीं भी हो तो हमें क्या? मैं चाहता हूँ कि उसे कोचिंग भेज दे। तो क्यों, उसके शहर में कोई कोचिंग सेंटर नहीं है? वहाँ घर में बहुत रश है, बाजी है, उनके बच्चे भी तो हैं। हाँ, तो इसका मतलब है कि उसकी नीयत हमारे पास उतने की है। नहीं बाबा नहीं, गर्मियों तक सिर्फ कोचिंग के लिए। बाबा क्या फर्क पड़ता है, इतना तो बड़ा घर है हमारा। मेरी बात गौर से सुनो अली कमाल, मुझे समझ नहीं आता कि रमजान आए तो खर्चा हरी परी दी दो, सर्दी आए या गर्मी आए याद में ही आता हूँ। तमाम खर्चे मेरे सर पर ही तो हैं। अगर गनी साहब पढ़ना चाहते हैं तो उसकी माँ पढ़ाए उसको, मैं बस यही कर सकता हूँ। पशु कैसा लग रहा है? इस तरफ घूमो जरा। बहुत अच्छा लग रहा है तुम पर। लूज तो नहीं है तुम्हें? नहीं, ठीक है। हाय, कितना हैंडसम लग रहा है मेरा भाई। अब तो कोचिंग पे पहन के जा सकते हो तुम रोजाना रोजाना। पहले अली कमाल भाई पहनने तो दें। अरे कैसे नहीं पहनने देगा, हर हाल में पहनने देगा। बेगम के जिद पे पहनने दिया जा सकता है तो मेरे भाई को भी दिया जा सकता है। अरे हाँ, मेरे जूते भी तो फट गए हैं, मैं ले लेता हूँ। ले लूँ क्या? ले लो मेरे भाई। बुरहान साहब के पैसों के असल हकदार हम ही तो हैं। बुरहान साहब पोते की माँ और अपने बहू के क्रेडिट कार्ड का बिल जरूर देंगे। क्या बात है। बात तो दूसरी रह गई होगी। कुछ नहीं, फिर से शुरू हो गई। जिद कर रही थी, मैंने उनसे कहा भी था सिनेमा चलते हैं, कहने लगी नहीं जाना है। मैंने पूछा खाने पे चलते हैं, उसका भी मना कर दिया। अब तुम ही बताओ मैं क्या करता। ऐसे ही है, मेरी कोई बात नहीं मानती है। मेरी तो कुछ समझ नहीं आता। फिर तुम क्यों दुखी हो रहा हो? मेरी माँ सठिया गई है। मैं गुस्सा नहीं करना चाहता, मगर वो ऐसे जुमले देती है कि गुस्सा रुकना मुश्किल हो जाता है। दोस्त, धोखा खुद ने खाया और मुझे समझाती है। छोड़ो ना यार, मेरी माँ भी बिल्कुल इसी तरह रिएक्ट करती हैं। तुम सेवल अम्मी के साथ मेरी माँ का मुकाबला नहीं कर सकते करीब। मैं सही कह रहा हूँ। मैं उन्हें बस खुश देखना चाहता हूँ। वो बाबा के गुनाहों की सजा काट रही हैं। तुम उन्हें रोकना चाहते हो, ठीक हो तुम भी। मैं उनके पास जा रहा हूँ, तुम यहाँ बैठकर मैच देखो। तुम मैच नहीं देखोगे क्या? मेरा जहन वहाँ लगा हुआ है। कमाल करते हो यार, मैच देखने का मूड था। कैसे देख सकता हूँ यार, तुम मैच का मजा लो, मैं चलता हूँ। हाँ चलो ठीक है। अरे यार, हम ऐसा करते हैं कि तुम पहले वहां पे पहुंचो, मैं बाद में पहुंच के कॉल करूंगी तुम्हें, ठीक है? अगर कहें तो डॉक्टर को बुलवा लेते हैं। इसकी जरूरत नहीं, ठीक हो जाएगा।
कब से दर्द हो रहा है आपको? आज सुबह से है। कोई दवा लिया आपने? ले ली थी। मैं जानता हूँ आपको। तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं यहाँ इसलिए आया हूँ कि मुझे आपकी फिक्र रहती है। मैं ठीक हूँ, तुम मेरी फिक्र न करो। अब तुम जाओ, तुम्हारे दोस्त तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। नहीं कर रहा कोई इंतजार, मैं सिर्फ आपसे मिलने आया हूँ। अच्छा, फिर तुम्हारे ऑफिस में जो काले बालों वाली लड़की है उसका क्या हाल है? बालों वाली लड़की है उसका क्या हाल है? ये तुम किस तरह की बात कर रहे हो? वहाँ चल के बैठे। चलो यहाँ आ जाते हैं। अरे भाई, तुम भड़क क्यों रहे हो? मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था। तुम अपना काम करो, तुम्हें इससे क्या? उफ, माफ कर दो यार। देखो, मेरे स्टाफ के लोगों के बारे में इस तरह की बातचीत मुझे पसंद नहीं है। मेरी सेक्रेटरी उन लड़कियों की तरह नहीं है, समझे तुम? वो करीम साहब बैठे हैं ना? कहाँ? वो देखो वहाँ पर। अरे हाँ, वही है। अच्छा भाई, फिर इस टाइप की बात नहीं करूँगा यार। जाकर मिलोगी नहीं तुम? नहीं, मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। देखेंगे तो खुद ही आ जाएंगे। तुम्हारी मर्जी। मैं चलता हूँ। अरे यार, इतनी जल्दी? जितना मैच देखना था देख लिया, अब तुम लोग एंजॉय करो। बाय। ये रहा आपका टिकट शहजाद बेगम। कैसा टिकट? दुबई जाना है आपको जुमेरात को। मैं समझी नहीं। इस जुमेरात को? ये कैसे हो सकता है? मेरी ओनर साहब से बात हुई थी कि अगले महीने जाएंगे हम लोग। वो सब तो मुझे नहीं मालूम। मुझे ओनर साहब ने कहा था टिकट लो और शहजाद को दे दो। पासपोर्ट तो है ना आपके पास, या मैं बनवा दूं? है। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया। आपको भी काफी जहमत हुई। हैव अ नाइस वर्क। थैंक यू। कुछ गलत हो गया क्या? बहुत ज्यादा। अब मैं क्या करूंगी बीनू? मेहरबान बाजी भी जा रही है अब तो। मैं तो उनकी वजह से बहुत मुतमईन थी। मैं भी। सुनो, कैन के पास रात में उन्हें छोड़ दिया करो। अरे यार, वो रात में कहाँ रुकती हैं? कभी मानती ही नहीं है। अब मैं कैन को किसके पास छोड़ूंगी? यार मैं ही उसे रात में रख लेती, मगर तुम उसको कैसे देख सकती हो? हम तो 9 बजे से पहले वैसे भी नहीं जा सकते, और इतवार वाले दिन भी काम करना होता है। सही कहा। हाँ, अब मैं क्या करूं बीनू यार? कोई बात नहीं, कोई रास्ता निकल आएगा। एकदम ये प्लान तुम्हारा कहाँ से बन गया? तुमने तो कहा था मीटिंग अगले महीने है। हाँ था तो ऐसा ही, मगर अब्दुल्ला बाबा को जल्दी है। वो फेस टू फेस मिलना चाहते हैं। वो खुद यहाँ क्यों नहीं आते? इस्तांबुल ज्यादा आरामदेह साबित होगा। मैंने भी कहा था, मगर उनका कहना था कि अमेरिकन आ रहे हैं। शहजाद को भी लेके जा रहोगे? मजबूरन। आयशा को भी जाना था, मगर मंडे को उसकी भी फ्लाइट है। क्या करें? यानी कि फाइनेंस मैनेजर के बगैर ही जा रहे हो? उसकी जरूरत नहीं है। हम बजट की मीटिंग करने दौड़ी जा रहे हैं। तुम चलना चाहोगे साथ? मैं कैसे चल सकता हूँ? अंकारा जा रहा हूँ, मिनिस्टर से मीटिंग है वहाँ। हाँ सही है। देखो ओनर, इसे अगले हफ्ते रख दो, मैं भी साथ चलता हूँ। अगर ये मुमकिन होता है। आखिर हम उन लोगों को इतना सर पे क्यों बिठा रहे हैं ओनर? हमारी कंपनी की भी कोई पोजीशन है। तुम अरबों को जानते हो करीम, उन्हें हमारी नहीं, हमें उनकी जरूरत है। आखिर मेरे जाने से क्या होगा? मुझे नहीं जाना है दुबई। मैं अभी जाके बात कर लेती हूँ उनसे। शहजाद
वहाँ मत जाओ। अजीब लड़की। क्या रात रुकोगे वहाँ? मीटिंग करके वापस आ जाएंगे। ठीक है। तुम्हारे लिए क्या लाऊं? कपलिंग्स वगैरह या कुछ और? तुम जल्दी जाके आ जाओ बस। ओनर साहब अंदर हैं? जी है। क्या करोगे वहाँ? मैं आ सकती हूँ? यस प्लीज आए। दुबई इस जुमेरात जाना है क्या? हाँ बिल्कुल। मगर हम लोगों को तो अगले महीने जाना था। हाँ बात तो यही हुई थी मगर जल्दी जाना पड़ रहा है। समझ गई। अगर मैं ना जाऊं तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? प्रॉब्लम तो होगी, लेकिन आप जाना क्यों नहीं चाहती? इसलिए क्योंकि मेरी तैयारी नहीं है जाने की। किस तरह की तैयारी? कहीं अपने बॉयफ्रेंड से इजाजत तो नहीं लेनी? मैं किसी को भी हिसाब देने के लिए मजबूर नहीं हूं ओनर साहब। मैं सिर्फ यहाँ रुककर अपने अधूरे काम पूरे करना चाहती हूँ। वहाँ ज्यादा नहीं रुकना है, सिर्फ एक रात, फिर वापसी। अगर मैं इस प्रोजेक्ट के हेड को साथ लेकर नहीं जाऊंगा तो अरब मुझे दुबई नहीं आने देंगे। असल में ऐसा है कि वो तुमसे मिलना चाहते हैं। बाबा देखिए कितना प्यारा है ना, है ना? बहुत अच्छी है बाबा, शुक्रिया बाबा। ये देखो इसमें सिर्फ इंजन की कमी है। अली कमाल, अगर बहुत पसंद आई तो अपने लिए भी ले लो। अल्लाह मुबारक करे, हमेशा खुशियाँ देखो। बहुत शुक्रिया अम्मी। लेकिन आप तो बहुत जल्दी ले आए बाबा, अभी तो बहुत है। होने दो बहू, कोई खराब होने वाली चीज तो नहीं है। रख दो बच्चे कमरे में, जब वक्त आएगा इस्तेमाल भी कर लेना। ये लें। शुक्रिया बेटा। चाय देने वाला हमेशा खुश रहे। बच्चियों के पुराने कपड़े तो अभी तक रखे हुए हैं। क्यों भाई, अभी तक नए हैं क्या? जी बाबा, अभी तक नए हैं, पुराने नहीं हुए। अभी तक क्यों रखे हुए हैं? किसी गरीब को दे दो, बेचारा दुआ ही देगा। बेटे को आने दे, फिर देखे मैं क्या करती हूँ बुरहान साहब। तुम्हारी जबान मुबारक हो नेमत, शुक्रिया। ओ ये गाड़ी भी कितनी खूबसूरत लग रही है। पोते के लिए नई गाड़ी ली है दादा ने। क्यों बाबा? ये कैसी बातें कर रहे हो अली कमाल? वो गाड़ी इसलिए थोड़ी है कि वो बच्चा लड़का है। इसमें ऐसी कोई बात नहीं, अच्छी लगी तो ले ली, सस्ती भी थी। वैसे गाड़ियां और भी थी। इन गर्मियों में अपनी बच्चियों को नई साइकिलें दिलाऊंगा। क्या कहती हो बेगम? बिल्कुल, वो भी सबसे ज्यादा खूबसूरत वाली। और जब ये बड़ी हो जाएंगी तो कार भी दिलाऊंगा। इधर आओ मेरे पास। मेरी बच्चियां पढ़ने और समझने में बहुत अच्छी हैं। मेरी बेटियां बहुत आगे तक पढ़ेंगी, यूनिवर्सिटी भी खत्म करेंगी इंशाल्लाह। और फिर मैं इनके लिए हर चीज लूंगा, हर चीज, देखना। पता है, जब भी इसे देखूंगी तुम्हारी बहुत याद आएगी। ये मेहरबान इस्तांबुल भी गई थी कभी। बहुत मिस करेंगी ना आप इस्तांबुल को? क्या इनको और आपको भूलना आसान नहीं होगा। मैं अपनी एक बहन इस्तांबुल में छोड़ के जा रही हूँ। और मैं भी। मेहरबान बाजी।
कैन की जिंदगी बचाई है। अगर आप नहीं होती तो आज कैन जिंदा नहीं होता। कैन को मैंने जन्म दिया, मगर जिंदगी आपने दी है। प्लीज ना जाएं, मेरी बहन बन के रह जाएं, मेरी प्यारी बहन। देखो तो गनी साहब को कोचिंग में दाखिला चाहिए, जरूर जरूर। जैसे पैसे तो मेरे पास पेड़ों पर लगे हैं, उसकी बदबू से सारा दिन मेरे सर में दर्द रहता है। गनी के पास दिमाग है क्या? फसू भी क्या करे, आखिर भाई है उसका। और जब हमारा इंसान चेहरे से पहचान में आ जाता है बेगम, बस एक जगह बैठकर हाथ में कुछ लेकर शुरू हो जाता है तब तब तब। अब उससे जाने का कहती क्यों नहीं हो तुम? कह दो बस अब चला जाए यहाँ से। चला जाएगा, चला जाएगा, आप परेशान ना हो, चला जाएगा। मेहमान है बेचारा। कल तुम लोग जा रहे हो ना चाची के पास? कल जाएंगे इंशाल्लाह। अगर अल्लाह ने मौका दिया तो अपने पोते की ऐसी खुशी मनाऊंगा सबसे बड़े होटल में। इस शहर के बड़े बड़े फनकारों को बुलाऊंगा। चले अब सो जाएं। सो ही जाते हैं। मेरा बेटा आपके पास जमानत है मेहरबान बाजी, अब मैं बेफिक्र होकर जा सकती हूँ। Good morning. Good morning, sir. जरा छोटे वाले रास्ते चलें। जी, ओके सर। बिल्कुल नॉर्मल है। चले फिर चेकअप शुरू करते हैं। जी, पशु को लेकर आप अंदर जाइए, मैं आती हूँ। ठीक है, चलें। आप फिक्र न करें पापा, मैं यहीं पर इंतजार कर रहा हूँ। तुम्हारी अम्मी साथ हैं क्या? वो मुझे कहाँ अकेला छोड़ती हैं? किसी चीज की जरूरत तो नहीं है? नहीं बाबा, किसी चीज की जरूरत नहीं। तो फिर ठीक है। काम खत्म करके कहाँ जाऊँ बाबा? फैक्ट्री या शोरूम? कहीं नहीं जाना, आज का दिन अपनी बीवी के साथ ही रहो। मगर फैक्ट्री में भी तो कोई नहीं है बाबा। फैक्ट्री की तुम टेंशन न लो। अच्छा हाँ, चेकअप के बाद फोन जरूर करना। ओके बाबा। क्या हुआ गनी, पसंद नहीं आई क्या? बहुत जबरदस्त है ये तो। ये नए कपड़े हैं क्या? कह सकते हैं। तुम हमेशा हर वक्त इसी तरह ही रहना।
तुम्हें यूनिवर्सिटी भेजने से बेहतर है तो मुझे रुई का काम शुरू कर देना चाहिए, रुई का। बस अभी जल्दी से बड़ा हो जाए ताकि मैं इसे देख सकूं, है ना? इंशाल्लाह बेटा ही होगा। ये तो लड़की है। हमारी मीटिंग तकरीबन 4 बजे शुरू होगी। एक्सीलेंट। एक्सक्यूज मी जी, हम लोग बस रास्ते में थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे, फिक्र न करें। अगर शाम की कोई फ्लाइट होती तो वापस चले आते। बहुत अच्छी बात है। जी जी बिल्कुल, चलो मिलते हैं। लेकिन क्या कर सकते हैं, नहीं होता। खूबसूरत है। आर्किटेक्चर वाली कंपनियों की जन्नत है ये शहर। ऐसा जैसे इस दुनिया का हिस्सा ही ना हो। हमारा स्काई टावर बन जाने दो, फिर देखना यहाँ हमारा नाम भी शामिल हो जाएगा। अच्छा होगा। दुनिया की होश है। वो देखो सामने 7 स्टार होटल, बुर्ज अल अरब। पैसे बर्बाद करने की काफी अच्छी जगह है वैसे। तुम फिक्र ना करो, हम नहीं रुकेंगे। प्लीज इस तरफ। प्लीज दिस वे। वेलकम। वेलकम सर। मिस्टर आबादी, हाय। हाय मिस्टर ऑनर, वेलकम। बहुत खुशी हुई। बहुत शुक्रिया। हाय मिस। हाय, शहरजाद है मेरा नाम। हाँ, शहरजाद, बहुत सुना है आपके बारे में। वेलकम, प्लीज आइए आइए। थैंक यू। चलें। मैंने तुमसे ये तो नहीं कहा था कि लड़का ही होगा, बल्कि ये कहा था कि शायद इस बार लड़का हो। तुम भी अजीब बातें करती हो। आप लोग भी तो लड़का चाहते थे, लेकिन फिर लड़की हो रही है। ऐसी कोई बात नहीं, वो भी अल्लाह की रहमत है हमारे लिए। लड़का हो या लड़की, कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर वहाँ वो कह रहे थे बुरहान साहब पोता चाहते थे। अब लो पोता। हाँ, छोड़ो। अब आगे देखते हैं कि क्या होता है और बुरहान साहब क्या कहते हैं। शाबाश गनी साहब, अच्छी तरह पढ़ाई कर रहे हो। किताब पर से सर उठा ही नहीं रहे हो तुम। अरे खाने के बाद पढ़ लूंगा बुरहान अंकल। जरूर जरूर पढ़ो। आयशा बच्चियाँ कहाँ है? कमरे में है बुरहान साहब, होमवर्क कर रही हैं। बुला के लाओ। जी अभी बुलाती हूँ। अरे टेबल अभी तक तैयार क्यों नहीं हुई? बस हो गई बुरहान साहब।
बच्चियाँ अभी तक नहीं आई? आयशा बुलाने गई तो है। आ रही होंगी, आप तो बैठे हैं। बहू बेगम कहाँ है? वो तो अपने कमरे में ही है। और अली कमाल? वो भी उसके साथ है। किस लिए? क्या मातम मना रहा है क्या? जाओ जाकर अपनी बहन को बुला कर लाओ। बाजी की तबीयत जरा खराब है ना, इसलिए। जाकर कहो अब आ भी जाओ, खाने के बाद जाकर सो जाना। बुरहान साहब। क्या है? आ जाओ बच्चों, आ जाओ। क्यों, होमवर्क कर रही थी क्या? जी। शाबाश, कितनी प्यारी और समझदार बच्चियां हैं ये। कैसे हो सकता है ये? कैसे सब्र करूं मैं आखिर? फसू, दुखी मत हो, कोई बात नहीं। कल हम किसी और डॉक्टर के पास चलेंगे। बेवकूफी की बातें क्यों कर रहे हो तुम? क्या दूसरे डॉक्टर के पास जाने से लड़का हो जाएगा? मैंने क्या क्या सोचा था, मगर कुछ भी पूरा नहीं हो सका। बाजी बुरहान अंकल नीचे बुला रहे हैं, खाना तैयार है। अरे यकीनन ताने देने के लिए बुला रहे होंगे। दोबारा लड़की हो गई। इससे पहले ऐसा कब कहा बाबा ने यार? तुम भी ना। कुछ नहीं कहेंगे, उठो आप, चलो। अगर बेटा नहीं हुआ तो मैं किसी को मुंह नहीं दिखाऊंगी, बता रही हूँ मैं तुम्हें। अरे ऐसी बातें ना करें प्लीज, वरना बुरहान साहब को और बुरा लग जाएगा। चले नीचे। कहीं नहीं जाना, मुझे कहीं भी नहीं जाना। मैं यहाँ पर सदमे से मर रही हूँ। अच्छा ठीक है, तुम जाओ। ये आपने दिया था? हाँ। ये दादी ने दिया था? डॉक्टर अंकल ने बोल दी थी। और ये बीनू आंटी ने दिया था। ओह, ये तो बहुत अच्छा है। और ये हाकन बहुत अंकल प्यारा ने दिया है। था। और ये दोनों मम्मा ने दिए थे मुझे। मेरा अच्छा बेटा। मेरा प्यारा बेटा। मिस्टर ऑर्डर, खाना पसंद आया हमारे यहाँ का आपको? जी बहुत अच्छा है। ओके ओके। मेहरबान आंटी, आप मम्मा को फोन करें ना। सुबह ही तो फोन किया था, दोबारा फोन करके क्यों परेशान करें? मैं मिस कर रहा हूँ मम्मा को। बेटा वो भी तुम्हें मिस कर रही होंगी। तुम्हारी अम्मी की तरह कोई नहीं इस दुनिया में। वो इस दुनिया में सबसे ज्यादा तुम्हें प्यार करती हैं और तुम सबसे ज्यादा कीमती हो उनके लिए। वो भला तुम्हें कैसे मिस नहीं कर रही होंगी? और आपका बेटा कहाँ है? हाँ बताए ना। जन्नत में। इधर आओ। शुक्रिया अम्मी। क्यों रो रही हो बहू बेगम? कोई मर गया है क्या? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? लड़का होगा इस बार, ये सोचकर बहुत खुश थी ये बाबा। क्या करे, इसे अफसोस हो रहा है। बेटा, इंसान को अल्लाह के फैसलों को कबूल करना चाहिए। अल्लाह जो दे रहा है उस पर उसका शुक्र अदा करना चाहिए। क्या लड़की औलाद नहीं होती? औलाद औलाद है बहू बेगम। इसका अफसोस ना करो कि लड़की होगी, बल्कि इस बात पर खुश हो कि सारी उम्र पड़ी है। आंसू पोंछ लो, अभी तुम जवान हो। इस बात का शुक्र है कि हालात हमारे साथ हैं। हमें अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए। अगली बार हो जाएगा, और क्या कह सकते हैं। Good night. See you later. Good night. Good night, Amar Saab. Good night, Mr. Abadi. It's a great pleasure to work with you. Good night. Good night. Good night. Good night. काफी समझदार लोग हैं, समझ गए कि हम थके हुए हैं। चलो ऊपर चलकर कुछ ड्रिंक्स लेते हैं। इजाजत हो तो मैं कमरे में जाना चाहूंगी। क्यों, क्या हुआ?
मैं थक गई हूँ जरा। ओके। $3 लाख। क्या? Bir gece daha.